Hello students, in today's video we are going to revise types of chemical reaction and it is from chapter number 1 chemical reactions and equation. So let's start. First type of chemical reaction is combination reaction. Its definition is that type of reaction in which single product is formed from two or more reactants. We can understand it with example. This is calcium oxide. It is also known as quicklime. When calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide, and it is also known as slacked lime. During this reaction, lots of heat releases. You can see in this reaction, two reactants are involved, calcium oxide and water. These two reactants combine and form single product. This is slacked lime. So what is happening here? Two reactants, single product. That type of reaction is combination reaction. Now there are more examples of combination reaction. Second one is burning of coal. Formula of coal is C, and when it is burned, it form carbon dioxide. बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है. सो कार्बन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट हुए. ये टू रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड देंगे. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन हुआ. सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इट फॉर्म वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट हुए, टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Next type of reaction is decomposition reaction. In decomposition reaction, single reactant breaks down and give two or more products. Again, we will understand with the help of example. First example is ferrous sulfate. When we supply some heat to ferrous sulfate, it breaks or decomposes to give ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So in this reaction what is happening? Only one reactant is present, single reactant. जैसे ही हमने इसको heat supply किया, this single reactant decomposes and gives three product, ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So this is decomposition reaction. Second one is calcium carbonate. Heat, it form calcium oxide and carbon dioxide. Again, what is happening in this reaction? Single reactant decomposes due to this heat and form two product. Okay, single reactant and two product. That means it is decomposition reaction. Okay, further this decomposition reaction is divided into three parts. First is thermal decomposition, second is photolytic decomposition and third is electrolytic decomposition. Now thermal decomposition में क्या होता है? That type of reaction in which heat is used to decompose the reactant. वैसे रिएक्शन जिसमें हीट को हम यूज़ करके रिएक्टेंट को डिकम्पोज करते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. यानी इसमें फर्स्ट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने आपको शो की थी, इसमें हमने हीट को यूज़ किया था, तो ये कैसी डिकम्पोजिशन हुई? थर्मल डिकम्पोजिशन. सिमिलरली अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ तो इस एग्जाम्पल में भी मैंने इस रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए हीट को यूज़ किया था. ओके, तो डिकम्पोजिशन तो हो गई लेकिन हीट की प्रेजेंस में हुई. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की जगह हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं. तो बच्चे, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या किया है? जो रिएक्टेंट लिया है वो सिल्वर क्लोराइड लिया है. ओके, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम रखते हैं देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सिल्वर एंड क्लोरीन. सो अगेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस रिएक्शन? Single reactant decomposes to two product. That's why it is decomposition. But this decomposition reaction takes place in the presence of sunlight. Okay, अगर sunlight की presence पे हो रहा है तो इस decomposition reaction का name change होके क्या हो जाएगा? Photolytic decomposition reaction. Clear? Third type of reaction is electrolytic decomposition
reaction. Electrolytic decomposition reaction means that type of reaction, decomposition reaction, in which electricity is used to decompose it. ओके सो यहाँ हमने क्या किया है, वाटर की डिकम्पोजिशन की है. एक बीकर लिया है जिसमें वाटर ली है हमने, एंड उस वाटर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं, एंड उन इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है. जैसे ही स्विच ऑन होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एंड हमारा जो वाटर है इट डिकम्पोजेस एंड गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके सो यहाँ भी डिकम्पोजिशन हुआ, एंड डिकम्पोजिशन हुआ किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. ओके तो दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज displacement reaction. Displacement reaction means that type of reaction in which more reactive element displaces less reactive element. Examples are given here. First example is iron plus copper sulfate. It forms ferrous sulfate plus copper. What is happening in this reaction? Firstly हम देखते हैं reactant हमने क्या लिया है. reactant में iron है जो कि एक element है, एंड कॉपर सल्फेट, इट इज़ सॉल्ट, कॉपर का सॉल्ट है. जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आप देखो यहाँ जो आयरन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जब आप देखोगे तो आयरन की पोजीशन टॉप पे है एज़ कम्पेयर टू कॉपर. सो आयरन क्या हुआ, मोर रिएक्टिव हुआ, तो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड जैसे ही ये डिस्प्लेस करेगा आयरन इसकी प्लेस पे आ जाएगा एंड कॉपर क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा. आप देखिए प्रोडक्ट साइड, कॉपर की जगह यहाँ पे आयरन ने ले रखी है एंड कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है. ओके सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दूसरे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. ओके तो यहाँ पे जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इट टेक्स इट्स प्लेस. When it takes its place, product is zinc sulfate and copper. Clear? Next reaction is double displacement reaction. Double displacement reaction में हम जो भी एलिमेंट्स इसमें नहीं लेते, हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं. आप देखिए यहाँ पे हमने 2 आयनिक कंपाउंड को लिया हुआ है. फर्स्ट इज सोडियम सल्फेट एंड सेकेंड इज़ बेरियम क्लोराइड. ओके ये जब आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में के फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूशन किस में हमने बनाया, वाटर में. देखिए यहाँ एक्वस लिखा हुआ है, AQ, यानी सोडियम सल्फेट को हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया. सिमिलरली बेरियम क्लोराइड को हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया एंड इनको रिएक्ट कराया. जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं एंड एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. अब ये आयंस का एक्सचेंज कैसे कर रहे हैं उसको हम समझते हैं. यहाँ पे आपका सोडियम आयन है और यहाँ बेरियम आयन है. तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम की प्लेस पे आ जाएगा एंड बेरियम सोडियम की प्लेस पे आ जाएगा, यानी बोथ आयंस एक्सचेंजिंग देयर प्लेस. ओके एंड प्लेस एक्सचेंज करके जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है दिस इज बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ठीक है तो दिस टाइप ऑफ यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, 2 आयंस अपनी प्लेस को चेंज कर रहे हैं. ठीक है ना, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच देखो डिफरेंस क्या है. डिस्प्लेसमेंट में एक था एलिमेंट, हमारा ये एलिमेंट है और दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये इसकी प्लेस पे आ रहा है और इसको डिस्प्लेस कर रहा है. लेकिन इसमें देखो एलिमेंट नहीं है, केमिकल कंपाउंड्स है. दोनों जो हैं केमिकल कंपाउंड्स हैं, यू कैन से आयनिक कंपाउंड्स है, और आयनिक कंपाउंड्स के आयंस जो हैं वो एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. ओके एंड इस टाइप के रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे आपका
सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड के रिएक्शन में ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए तो हम इसको प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। तो जिस रिएक्शन में ये इस टाइप के प्रेसिपिटेट बनेंगे उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। असाइनमेंट में इस चैप्टर से मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। 7 में हालांकि आपको टाइप ऑफ रिएक्शन के नेम लिखने नहीं दिए गए हैं, बट फिर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है। ओके, सो दिस इज असाइनमेंट and you have to do this assignment in science notebook. Thank you.